Students, let us learn about the characteristic of particles of matter. In our previous two activities, the first activity in which we have added sugar to the water, and in the second activity in which we have added potassium permanganate to the water. In these both two activities, what we have observed that sugar, salt, or Dettol or potassium permanganate got eventually distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, that means limbu pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. Okay. Now, particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Now, let us see how. Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particle moves faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why this happens? Now let us look on the activities. Put an unlit incense stick in a corner of your glass. How close do you have to go near to so as to get its smell? Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting at a distance? Record the observations. Second activity. Take two glasses or beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread eventually throughout the water? In third activity, drop a crystal of copper sulphate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the down. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens at the time as the time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? From above all these activities, we can conclude the following. We can conclude that particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, this kinetic energy increases. So we can say that increase in temperature and can increase in the temperature, the kinetic energy of the particles also increases. In these above three activities, what we have observed that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में हम फर्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, मैटर में जो पार्टिकल है, मैटर हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल यानी पार्टिकल का मतलब एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. वो हमेशा मूव होते रहते हैं. दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग. दे आर नॉट इन ए दे आर नॉट सिटिंग एट सेम प्लेस. ठीक है, मतलब ये कि जैसे कि हम अब एक जगह बैठकर ये वीडियो सुन रहे हैं. ठीक है, इस तरह पार्टिकल नहीं होते. पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये कमरे में, वो रूम में, यहाँ वहाँ, चारों तरफ घूमते रहते हैं. पार्टिकल्स कंटिन्यूअस रहते हैं. पार्टिकल्स एक जगह बैठे हुए नहीं रहते. इसका एग्जाम्पल आप देखें. एक ग्लास लेंगे, एक ग्लास में पानी लीजिए, पानी में और एक ग्लास में पानी लीजिए, दोनों ग्लास में बराबर पानी लीजिए. एक ग्लास में क्या कीजिए, इंक का एक ड्रॉप डालिए. इंक पेन में जो इंक डालते हैं ना, उस इंक का एक ड्रॉप डालिए. दूसरे ग्लास में शहद का एक ड्रॉप डालिए. आप डिफरेंस देखें. इंक जो ही आप डालेंगे फौरी पूरे पानी में फैल जाती है. ठीक है,
शहद जो ही आप डालेंगे शहद भी फैलता लेकिन स्लोली फैलता, ठीक है। इसलिए कि फौरी आप इंक का एक ड्रॉप आप वाटर में पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे इंक का ड्रॉप फौरी तौर पे जो है सो पानी में फैल गया। क्यों फैला? क्योंकि पानी में उसको फैलने की जगह मिली। फैलने के लिए पानी में हाइड्रोजन एटम्स है और ऑक्सीजन एटम्स है। इंक में भी उसके अलग एटम्स है। इंक के जो एटम्स है हाइड्रोजन एटम से मिलने के लिए बहुत सारे उन्हें स्पेस मिली। जो ही वो स्पेस मिली वो फैलते गए, ठीक है। इस तरह लेकिन और एक एक्टिविटी अगर आप करेंगे, और एक एक्टिविटी में आप देखेंगे कि एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है। एक गिलास पानी में आप जो है सो शक्कर ऐड कीजिए, ठीक है, शुगर ऐड कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक गिलास पानी लीजिए, उस गिलास में भी उतना ही शुगर ऐड कीजिए जितना शुगर पहले के गिलास में डाले थे। लेकिन उस पानी को आप गर्म कीजिए, बॉईल कीजिए और परख देखिए। परख आपको ये नजर आएगा कि जिस पानी को आप गर्म करेंगे उस पानी में शक्कर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी घुलेगी, बहुत जल्दी घुलेगी। और वो पानी जिसे आप गर्म नहीं कर रहे थे उसमें घुलने को टाइम लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी मैटर को आप किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर गर्म करना मतलब उसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। हमको बुखार आया तो हमारा जिस्म गर्म होता। क्यों गर्म होता? हमारे अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता। उसी तरह पानी को जब आप गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता तो वो शक्कर के घुलने की ताकत बढ़ जाती, शक्कर और स्पीड घुलता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा टेम्परेचर मिला वैसा उसके फैलने की ताकत ज्यादा हो जाती, फैलने भागने की ताकत बढ़ जाती। मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी ने भागने की कुव्वत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। भागने की कुव्वत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसलिए कि अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो शक्कर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें और ताकत मिलेगी और फास्ट भागेंगे। इसी तरह कहाँ भागेंगे? पानी के अंदर भागकर पानी में घुल मिल जाएंगे। लेकिन वो पानी जो ठंडा है उसमें टेम्परेचर नहीं है, उसमें भी शक्कर घुलेगी लेकिन स्लोली घुलेगी। मतलब ये कि हर मैटर में हर मूव होने वाली चीज, आगे बढ़ने वाले मैटर में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के बगैर कोई भी मैटर आगे नहीं बढ़ता, कोई भी मैटर किसी चीज में घुल नहीं जाता। काइनेटिक एनर्जी के अगर उस काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर देंगे, आग देंगे तो उससे और उस टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी और वो जल्दी घुलने लगेगा। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।